ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم جنگی حالات سے تھوڑا سا نکل کے نا بات کرتے ہیں سیاحت کے حوالے سے, کیونکہ سیاحت کسی ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے اور یہ ایسا شعبہ ہے جس پر زیادہ خرچ تو نہیں ہوتا, مگر یہ کسی ملک کی جو معاشی طور پر ہے اس کو جو ترقی ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جن کی معیشتیں محض سیاحت پر چل رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے پاس بھی سیاحت کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو دیگر ممالک کے پاس شاید نہیں ہے. بالکل ایسے ہے غزل. اور پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اس میں رکاوٹیں ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے؟ اتنے سارے سیاحتی جو ہمارے مقامات ہیں ان کی موجودگی سے پاکستان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی امپورٹنٹ شخصیات موجود ہیں. سر تعارف کروانا چاہوں گا اعظم جمیل صاحب کا, سابق وزیر مملکت برائے سیاحت. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر, اٹس پلیجر ٹو ٹاک ود یو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور موجود جی میرے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ آپ پہلے بھی مل چکے ہیں. اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. اعظم صاحب سے بھی آپ مل چکے ہیں, لیکن اس وقت ہم نے زیادہ ان کی بیٹی کے حوالے سے بات کی تھی, تو ابھی ہم لوگ ان سے ہی بات کریں گے. انڈرمائن کر گئے تھے ہاں بالکل. اب اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ایک سائڈ پر کیا ماریہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, کے پی سے فرسٹ ٹورسٹ گائیڈ ہیں. ان دونوں سے جانیں گے کہ کیا کچھ کمیاں ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان میں, مزید ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو سر سے ہی پوچھتے ہیں. بالکل اعظم صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو سیاحت کی بات ہوتی ہے وہ تو ماریہ سے پوچھیں گے کیونکہ ان کے ٹور کینسل ہوئے ہیں, لیکن سر یہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, آپ کیونکہ اس میں وزیر بھی رہے, ہم اس کو کس طرح سے گروتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو بیوٹی ہے, جو پہاڑ ہیں, جو ہمارے پاس ویلیز ہیں, وہ شاید پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے, لیکن انفارچونیٹلی اتنا زیادہ ٹریولر ہم اٹریکٹ نہیں کر پاتے. ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی, آپ نے یاد کیا دوبارہ. اس وقت بیٹی کے بغیر آیا ہوں تو شاید مجھے تھوڑی سی اٹینشن مل جائے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹورزم ہے نا, یہ ایک نازک شعبہ ہے. میں اس کو حساس محبوبہ کہتا ہوں. یہ بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہے لیکن بہت جلدی مان بھی جاتی ہے. اچھا, یہ اس کی ایک نیچر ہے, یہ احساس محبوبہ کی طرح ہوتی ہے. اب جیسے اب یہ پچھلے ہفتے 10 دن جو ہوا, تو ٹورزم ول بی دا فرسٹ انڈسٹری جو امپیکٹ ہوگی نیگیٹولی. ٹھیک ہے جی, باقی سب چل رہا ہے. آپ پرچون کی دکان پہ جا کے آپ اپنا سودا بھی لے رہے ہیں, ہر اکانومی کا پورشن چل رہا ہے. یہ پورشن پہلے بیٹھتا ہے, لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے. آپ نے ایک اور سوال, 2 سوال ایک میں کر دیے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی بیوٹی ہے, ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے. ہمارا نہ ڈیولپ کرنے کی سب سے بڑا وجہ ہی بیوٹی ہے, اور وہ اس لیے کہ ہم نے بیوٹی پہ بہت ڈیپینڈنس دے دی. اور جب آپ نے بیوٹی پہ اتنا ڈیپینڈنس دی تو اس کے ساتھ جو بیک اینڈ لوازمات ہوتے ہیں ٹورزم, وہ آپ نے پچھلے کئی برسوں سے اگنور کر دیے. بھائی ٹھیک ہے, K2 بہت اونچا ہے, 8611 میٹر اس کی بلندی ہے. سیف الملوک بہت خوبصورت لیک ہے, کاراکوروم ہائی وے بہت اچھی ہے, لیکن یہ ہمارے فزیکل ایسٹس ہیں. فزیکل ایسٹس آن دیئر اون نہیں چلتے جب تک ان کے بیک اینڈ پہ ایشو نہ ہو. اب کاراکوروم ہائی وے 11-15 گھنٹے کا سفر ہے, ایک غسل خانہ نہیں ہے. آپ کر لیں, اگلی باری آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں نا تو وہ کہیں بیٹا میں نے غسل خانے جانا ہے, تو ان کو کہنا امی K2 8611 میٹر ہے. بالکل. It doesn't matter how beautiful you are unless your back end services are there. وہ جو ریسورسز ہوتے ہیں, آپ کا روڈ سٹرکچر ہر چیز جی, تمام تر چیزیں میڈیکل. اگر کاراکوروم ہائی وے پہ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے, مکینک کو آتے آتے 10 گھنٹے لگ جائیں. گاڑی خراب ہو جائے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی اب گاڑی خراب ہو جائے, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے. جو ماریا کہہ رہی تھی کہ لوگ ڈر گئے ہیں, وہ لوگ اسی لیے ڈرتے ہیں. ویسے ہماری قوم آپ کو پتا ہے بڑی نہ ڈر ہے, اس نے تو سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہننی. بالکل, اس نے تو کہنا ہے ہمارے ساتھ, اب جا کے وہ 500 روپے بچانے کے لیے پہنی ہے, جان کا خطرہ ان کو نہیں ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ وی ٹیکنیکلی آر اے کیئرلیس نیشن. لیکن باقی جو ہماری سروسز ہیں, ہسپتال دیکھ لیں, اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو کون آئے گا ادھر؟ مجھے بتائیں نلتر میں کون آئے گا؟ آپ گلگت لاتے لاتے وہاں تو 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو کوئی فرسٹ ایڈ دینی ہوتی ہے اور کسی کارڈیولوجسٹ نے دینی ہوتی ہے. بالکل. تو ہم ان
चीजों में वीक है, चीजों में वीक है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हम उतना आगे नहीं जा रहे। बिल्कुल से मारिया को भी डिस्कशन में शामिल बिल्कुल करते हैं, जरूर उसकी बात लेंगे। करें। मारिया, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से सर ने सबसे पहली बात की ना कि इन हालात के बाद सबसे पहले हमारा ये वाला शोबा जो सयाहत का ये बैठ जाता है, क्योंकि आप गाइड करती हैं लोगों को, आपको ज़्यादा इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी, फ़ौरन आते हैं आपके पास, कितना नुकसान होता है और कितना नुकसान अभी हुआ है? अभी तो जब एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान को टॉप 10 डेस्टिनेशंस में जब करार दिया, तो उसके बाद फॉरेनर्स इस तरह आ रहे थे कि हम खुश थे कि ये सारा सीज़न ना जैम पैक जाएगा। तो वो सारा फॉरेनर या तो आया नहीं, जो आया है वो चला गया डर के मारे वापस। तो ठीक ठाक नुकसान है, क्योंकि वो इमेज दोबारा से लाने में बड़ा टाइम लगेगा बिल्कुल उस जगह पे जाने पे, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे अपने 5 ट्रिप्स जो हैं इस सीजन के कैंसिल हो गए। इस तरह मेरे साथ जो और फेलो ट्रैवलर्स हैं उनका भी यही सीन चल रहा है, और लोकल लोग भी डर गए हैं, लोकल भी डर गए हैं। अभी चिलम जोशी का फेस्टिवल है, तो उसके लिए काफ़ी लोग जो लोकल टूर गाइड्स हैं, जो लोकल लोगों की ट्रिप्स कराते हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि यार हमारा सारा काम खराब हो गया। तो सर की बात बिल्कुल ठीक है, ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी खफा भी हो जाती है लेकिन कितनी जल्दी अब ये उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा कि ये नाजुक हाँ, ये हसीना है। नाजुक हसीना मानेगी कितने टाइम में भी ये नहीं पता। नहीं, जल्दी मान जाती है, सर ने ये भी कहा। अच्छा सर, आप क्योंकि वजीर भी रहे इस शोबे में, तो जब आप दुनिया की ब्यूटी देखते हैं, आप स्विट्जरलैंड को देख लें, आप यूरोप को देख लें, वहाँ पे ब्यूटी तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कनेक्टिविटी भी दी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान की हैं कि जगह पे केबल कार है, कहीं पे बुलेट ट्रेन है, कहीं पे क्या है। सो हम इन फैसिलिटीज़ को कब इन्हेंस करेंगे? मतलब हम एक सॉरी टू से सैफुल मलूक वाला रोड नहीं बना पा रहे कि वो वहाँ की जो जीप इंडस्ट्री है उसको डैमेज होगा। अब अगर उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा तो आप एडिट कर दोगे। नहीं, आप खुल के बोलें। देखिए, प्रॉब्लम, मैं हुकूमत में रहा हूँ और मुझे हुकूमत पे तनकीद करने में कोई क्या कहते हैं हेजिटेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं डेवलप कर सके बिकॉज हुकूमत ने चाहा कि हम करेंगे। ये हुकूमतों का काम नहीं है, बिल्कुल ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हर चीज़ जो है वो हुकूमत कहती है हम बनाएंगे। भाई आप, इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, ये एक सिंपल रूल है। तो जब आप ताकत और हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो वो कभी भी नहीं बनेगी, और फिर अगर वो आप बना भी लोगे और टैक्स पेयर का पैसा खर्च भी कर दोगे, वो चलेगी नहीं। अगर ये हुकूमत गुसलखाने बनाए ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि शाम तक कोई उसका नलका उठा के ले जाएगा, कोई उसका सिंक उठा के ले जाएगा। बिल्कुल। आप प्राइवेट सेक्टर को वहाँ गांव में लड़कों को दें, उनको जगह मुफ्त दे दें और उनको बना के दे दें। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा बाथरूम है, इस पे बैठ के चार्ज करो, रजिस्टर खोलो, हर बंदा आए। मैं कहता हूँ लोग 100 रुपए देंगे। आपने मोटरवे पे देखा है ना, हैस कॉल के बाथरूम से लाइनें लगी होती हैं, वहाँ इन बच्चों को दे, उनका ये सोर्स ऑफ इनकम होगा और वो ऐसी इसको मेंटेन करेंगे, सफाई करेंगे। तो जब आप ओनरशिप नहीं देते, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। अब जो सैफुल मलूक की बात की, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सैफुल मलूक नीचे नारायण से लेकर सैफुल मलूक तक इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है कि अगर आपने सड़क बना दी तो कल आप अपनी आल्टो लेके चले जाओगे, तो उनका किचन कैसे चलेगा? बिल्कुल। वो तो हजारों रुपए आपसे लेते हैं, लाखों रुपए उनकी आमदनी है। वो कहते हैं जी एक जीप ले लें। तो जब आपको याद है एक जमाने में बालाकोट से आगे आपको जीप लेनी पड़ती थी, आज से कोई 25-30 साल पहले। तो अब आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं नारायण, लेकिन बालाकोट वाले बहुत नाराज हुए और वो एक बड़ा इशू खड़ा हुआ और काफी अरसा लग गया उसको सॉर्ट आउट करने में। तो एक तो आपका जो सवाल था, एक लोकल इंटरेस्ट है, एक वो कमिटमेंट नहीं है, दूसरी नीयत नहीं ठीक, नीयत बिल्कुल नहीं, नीयत नहीं ठीक, बिल्कुल ऐसी। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं, जिस तरह से सर ने कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर का काम है, और चूंकि आपने बहुत सी जगहों को टूर किया, आपको क्या कमी लगी? क्या कमियां लगती हैं, क्या कमजोरियां हैं, कितने फ्लॉज हैं? फ्लॉज तो जैसे सर ने इतने गिनवा दिए, वाकई में बहुत ज़्यादा है। इनकी बात ठीक है। देखिए, जब नारायण का रास्ता बंद होता है, ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। अब छोटी सी सड़क है, उसको खोलने में हुकूमत को 2-2 महीने लग जाते हैं।
सारा टूरिज्म तो वहीं से ख़राब हो जाता है, लोग बाई फ्लाइट जा नहीं सकते। जो लोग फिर बिशाम के रास्ते जाते हैं, सर वाली बात के टॉयलेट्स नहीं है, 14 घंटे का सफ़र है, 15 घंटे का इनक्लोजर टाइमिंग्स है, रोड बंद होगी तो आप फंसे रहेंगे पूरा पूरा दिन वहाँ पे। तो ये मसले तो इतने हैं कि आप गिनते गिनते आपको पूरा शो ख़त्म हो जाएगा। और वही बात कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ करने भी नहीं देती ना, तो ये चीज़ भी जो है वो इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है, इफेक्ट हो रहा है बहुत ठीक। कुछ। सर 77-78 साल तो हो गए, कब तक ये इफेक्ट चलता रहेगा? नहीं, मैं तो बहुत, जितना मैं तनकीद करता हूँ ना, बिलीव करो मैं, मेरे से बड़ा ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तान में है ही। अच्छा। हाँ, मैं तो, और मेरी 70 साल उम्र हो गई है, और मैं हुकूमत में तो कुछ अरसा ही था। मैं 70 साल में 40 साल पाकिस्तान की टूरिज्म को डेवलप करने में मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, चाहे मेरा कोई ऑफिशियल रोल है, चाहे मैं घर से बैठ के कर रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह ठीक होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा पाकिस्तानियों में बहुत एतमाद है। सर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आप क्या समझते हो, क्या लिए जा चुके यार हैं? देखो, गवर्नमेंट साइड से तो सिंपल ये करना है कि कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है। लोकल कम्युनिटीज के बगैर कोई चीज नहीं चल सकती। मैंने 21 साल आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में काम किया। ये सरीना होटल सब हमारे होटल्स थे। अब हमने शिगर खपलू में होटल खोले। वो क्यों कामयाब हुए? क्यों हमने शिगर के विलेजर्स को शेयर होल्डर बना दिया। आज आप फ्रॉस्ट का या किसी जूस का डब्बा फेंकते हैं ना, तो होटल की इंतजामिया से पहले गांव का बच्चा आके उसको उठा के डस्टबिन में करते, क्योंकि वो उसका होटल है, इफेक्ट हो रहा है। वो उसका होटल है। वो कहता है ये मेरा होटल है, मुझे हर महीने इसमें से मुनाफा मिलता है। तो जब आप कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करोगे, जब आप ये कहोगे कि जी पंजाब से कोई जाए और वो स्कर्दू में होटल बना के तो पैसा लेके वापस यहाँ के अपना लैंड क्रूजर ले ले, तो वो लोकल कम्युनिटीज कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो हम अगर लोकल कम्युनिटीज को एक्सेप्ट कर दें, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। मारिया जैसे आप देखो ना, ये इतनी छोटी सी लड़की है और आगे पीछे टोर्स चला रही है, बड़ी बात है। और इन लोगों के लिए तो मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं आज भी पूरे नॉर्दर्न एरियाज में मुफ्त बच्चों की ट्रेनिंग करता हूँ। मैं जाके उन्हें कहता हूँ चलो भाई संभालो, ये तुम लोगों ने करना है। और हुकूमत को मैं यही मतलब मैं एडवाइस करने की तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप एक कदम पीछे हटें और इन कम्युनिटीज को आगे करें और कहें यार ये तुम्हारा रोड मैप दे दें। खत्म। एक रोड मैप दे दें कि ये रोड मैप है, इस तरह आप कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आप शेयर हमें देंगे। और दूसरा बेटा, एक जो हमारा सिक्योरिटी से फोबिया है ना, इसको हमने जरा नरम करना है। इंशाल्लाह हो जाएगा सर। अब ऐसे वहां पर पुल हैं, इसको पता होगा मेरे से बेहतर, जो हर साल खुद टूट जाते हैं। ऐसे ही खुद ही टूट जाता है। वो आता है रेला और वो गांव वाले जो है, हाँ, वो खुद टूट जाते हैं, गांव वाले उसको ठीक करते हैं। उस पुल की तस्वीर लेना मना है। नहीं, बाज तो पुल ऐसे जो खुद ही टूट जाता है। हाँ, अपनी मदद आप लोग ठीक करते हैं। बाज तो पुल ऐसे, वो मारिया मेरी बात से एग्री करेंगे आप भी, वो हुसैनी ब्रिज है जिस तरह से, वो हमने एडवेंचर बना दिया। हालांकि उसमें गैप इतना है कि अगर आपका पांव फिसल गया तो आप उस बड़े से दरिया में जाके गिर जाएंगे, लेकिन वो हमारा एडवेंचर बन गया। बस थोड़ा सा हम ये समझना बंद कर दें कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। हाँ। थोड़ी सी हमारा दिल खोल दें, अपने जरा घर के दरवाजे खोल दें। अब आप देखें, मुझे लोग कहते हैं कि हमने अपने दिल बंद कर लिए। हाँ। मैंने कहा दिल तो बहुत बाद में बंद किए, पहले हम अपने घरों के गेट बंद करें। बिल्कुल ऐसे। तो जब गेट बंद होगा तो फिर दिल बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मारिया, ये बताएं, जिस तरह से सर ने कहा ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इन कमजोरियों को दूर किया जाए, आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप उन जगहों पर जाती हैं, जब जाती हैं देखती हैं कि इतनी कमजोरियां हैं, तो क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? मुझे थोड़ा सा शॉर्ट जवाब दीजिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टूरिस्ट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारा टूरिस्ट सबसे पहले जाके गन फेंकता है, सर ने कहा कि एक बच्चा उठाता है, उसको नहीं उठाना। उस टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल होना है कि जी मैंने गन नहीं फेंकना। बिल्कुल। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं कि टूरिस्ट को खुद रिस्पॉन्सिबल होना है। हम इंडिविजुअली खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तो चीजें ठीक होंगी। ठीक हो गया। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वजानी का साजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्कशन हमारी ट्रैवलिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इस हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा, और सर की बातों से तो गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए, और इस तरह के अगर आप चीजें करेंगे तो आपकी जो टूरिज्म है वो ग्रो होगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।